and we got a diagnosis, and I am thinking, surgery से हो जाएगा, because I don't know what is happening. मेंटल रिटार्डेशन तो सुन भी लिया होगा, ऑटिज्म तो क्या ही सुना है. द फीलिंग वाज कि मेरे को जैसे कैटेगरी में खड़ा करते हैं ना, और आपको फांसी की सजा सुनाई है, आपको टाइम भी नहीं दिया है कि आप अपनी सफाई दे सको. 3 महीने की जगह 6 महीने का टाइम देना चाहिए था. नहीं, आई हैव 100 केस. आई सेड फॉर दैट इट इज योर 100 केस. This is for me only one case. Correct. See, God gives it to those who can handle it. Satyam, I misplaced Satyam 12 times. Because क्या होता था कि मतलब या तो वो घर से ही चला गया, हम कुछ और कर रहे घर से चला गया, या फिर मैंने शिवम का हाथ टाइट पकड़ के रखा सत्यम समझ के, और सत्यम को शिवम समझ के छोड़ दिया. मुझे मालूम था कि कब तक मैं उनके साथ रहूंगी. So they have to find their own ways. Better they do as early as they could. See, non-verbal doesn't mean non-communicative. Exactly. So you have to be proactive about it. I make it a point that I am honest, but I also give some hope. So 2 H's I always think of when a parent comes to me. Honest, 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 but give them some hope. Don't tell them ये नहीं हो सकता. Welcome both of you to the Dolly Show today. I am truly amazed to have you both here. And yes, a new conversation, new questions that we will be answering today. So yes, we have our doctor who is Dr. Astha. So welcome, doctor. And thank you for being with us. And yes, we have our parent who is Sunita ma'am. So welcome, ma'am. And yes, a lot of things that we will be learning from you as well as from you. So to start with, Dr. Astha, everybody knows a pediatrician, but very few understand what is a pediatrician and what is the difference between a developmental pediatrician. So I would love you to tell us so that our audience can really understand this difference and take the right step. So basically, you do a post-graduation in pediatrics, and developmental pediatrics is a newly emerging branch of pediatrics. So I finished my post-grad in pediatrics and post that a fellowship in development pediatrics. A general pediatrician would look at the growth of the child, nutrition, vaccinations, common cough, cold, that all of us are aware of. A developmental pediatrician essentially looks at the development of a child. How well is the child speaking, socializing? Does the child have good eye contact? How is the child socializing with the peers around? Basically, how is the child experiencing the world? That's what a developmental pediatrician does. So, yeah. Wow. Because this is very important for our audience, even normal parents to understand this difference. Right. And when do you think should a parent, when should they go to a pediatrician and when should they go to a developmental pediatrician? Right. So more often than not, general pediatricians refer children with developmental delays to us because they catch these red flag signs and then that's how they refer them to us. A lot of the times, parents who've been noticing red flag signs for pretty long, like persistent red flag signs, they end up coming to us. So a person should go to a developmental pediatrician when they think that the teacher has been complaining for really long. There are some issues with the development. And if the maternal anxiety suggests that something is wrong with the development of the child, then you should definitely go because 90 to 95% of the time, the maternal anxiety is always right. And mothers catch development better than a pediatrician, I would say. Coming to our mother, Shivam, we did have a conversation with Shivam, and you are a mother of 2 sons, Shivam and Satyam. Both are on the autism spectrum, but with totally different personalities, with totally different traits. First and foremost, ma'am, I would love to know your journey. It has been a difficult but memorable journey. One fine day I'll write about it. So it becomes memory for all. It becomes see, initially the diagnosis took a lot of time because normally when it is twins, तो घर में ऐसा हो रहा है कि बच्चे कमजोर है, होते बोलते करके
and then we went to ENT because we thought कि they didn't listen. तो वहाँ पर भी like they gave a clean chit कि नहीं है ऐसे करके. But I was not satisfied. I went to hearing Ali Awar Hearing Institute. There they mentioned PDD. So what is PDD? Pervasive Delayed Development. But वो अभी हमें पता है, तभी नहीं पता That time था. it was तभी नहीं yeah, पता correct. था. तो I went to my pediatrician. तो fortunately जो मेरे डॉक्टर थे उनके सिस्टर वाज इन अमेरिका एंड so she knew, she's also a pediatrician, so she knew about it. So that's how he knew about it. So he told ki I think you should go to a neurologist, and not any neurologist, Brijesh Udani. That time he was the only Yes. one neurologist, you know, who could diagnose. So it took 3 months of time for me to get the appointment. I went with both the kids, and within a minute he wrote a diagnosis and done. And we got a diagnosis, and I am thinking, चलो surgery वर्जरी से हो जाएगा, because I don't know what is happening. Yeah, when it Long hits you, back. yeah. नहीं, because हमें पता ही नहीं, हमने सुना ही नहीं है. Correct, correct. मेंटल रिटार्डेशन तो सुन भी लिया होगा, ऑटिज्म तो क्या ही सुना है हमने. तो so he said no, they cannot go to normal school, and I'm like, who are you to tell me that? They will not do that. You are no one to tell me that. So he said, ma'am, like, you know, you're not understanding. I said, then you better make me understand. So he said ki he wrote therapies and all, you know, ऐसे करके he wrote it. So I said, like, you know, and he said ki there is no medicine and nothing, like, you know, and you have to find this therapies. And I went out blank, like, you know, the feeling was कि मेरे को जैसे कैटेगरी में खड़ा करते हैं ना, और आपको फांसी की सजा सुनाई है, आपको टाइम भी नहीं दिया है कि आप अपनी सफाई दे सको. Correct, correct. So I was out and I was thinking, अच्छा, मतलब वो grasp Yeah, लेके, you're able to get हाँ, onto कि, terms. and I'm What is alone. What has happened, yes. I'm alone with both the kids in Hinduja Hospital. that? So I was like, अच्छा, तो अभी आगे क्या? तो when I'm turning back, तो sister is saying, नहीं, he's busy. Like, अभी आपका हो गया पूछ के? I said, नहीं. After 3 months, I got the appointment. Like, it's no. So I said, I need to know ये कहाँ पर होगा. लिख के तो दे दिया, पर ये होगा कहाँ पे? So she said, no. I just barged into. As a mother, I just barged into. He said, कि no, take a next appointment. I said no. So he said कि like, you know, हमको खाने का टाइम नहीं है, ये नहीं है. I said 3 महीने की जगह 6 महीने का टाइम देना चाहिए था. नहीं, I have 100 case. I said, for that, it is your 100 case. This is for me only 1 case. Correct. So you better give me time. So he said, no, you need to find your ways and all. I said, you need to, you know, set your things right. You need to have counseling. You need to have everything. And I will not recommend anyone to. And I just went out of crying and all. I don't know what to do. Then slowly, हमारी बिल्डिंग में कोई था, किसी ने बताया थेरेपी का वहाँ पे है. Slowly, and I be staying Bhandup Central में अभी तक भी, it's just coming up. Yeah. So I was traveling all the way to Malad for 1 hour therapy. I was traveling 3 hours. Till, you know, then someone suggested there is one center in Ghatkopar. We went there. Then meanwhile, you know, Shivam started repeating things, जिसको ukulele बोलते हैं. तो फिर मेरे को लगा कि He might उसको, talk. हाँ. And Satyam was extremely hyper. मतलब हिंदी में बोलो ना, एक तो नीम चढ़ा ऊपर से करेला, तो वो कि एक तो तुम ऑटिज्म हो, ऊपर से तुम ADHD हो. So he was like, I don't know, मेरे को करना क्या चाहिए. But you took it. I mean, now you seem to be really strong and, you know, just laughing it out. No, that time also, जब I can सत्यम, understand. नहीं, I was always like this. सत्यम एक बार पंखे पे चढ़ गया, हमारे घर में काम चल रहा था कलर का, तो वो फटाफट भाग के आए हम लोग. अरे भाभी वो ऊपर चढ़ गया. मतलब 1 मिनट रुको, मेरे को कैमरा लाने दो, तो फोटो क्या. I'm not worried because I'll not get to see this. Oh, wow. See, God gives it to those who can handle it. Yeah. That's the spirit. I mean, you have to handle, but This is the spirit. एक बार नया मेट्रो खुला था, तो आई जस्ट थॉट कि सत्यम को मैं लेके जाती हूँ घुमाने. और हम लोग ऐसे ट्रेन में चढ़ने गए, मैं अंदर गई, वो चढ़ने तक ही जस्ट पैनिक्ड और समथिंग, आई डोंट नो व्हाट पैनिक है, वो थोड़ा सा स्टेप हो गया जब तक डोर बंद हो गया. Oh, God. एंड आई एम लाइक
ये तो खड़ा ही हुआ है। और फिर आई डोंट नो, फिर मैं नेक्स्ट स्टॉप पे उतरी और फिर मैंने वहां से वो कस्टमर केयर को फोन करके बोला कि हाँ। वहां पर वो लड़का है, आप उसको रुकाओ, मैं आती हूँ। तो दे वर वेरी स्वीट, दे सेड नो नो मैम आप बैठो, हम लेके आते हैं। ऐसे लेके आ सकते हो तो आ जाओ। आई चैलेंज हिम इंस्टेंटली। तो दे से हाँ मैम आप बैठो। विद इन 7 मिनट्स दे कॉल्ड मी। मैम वो आ नहीं रहा है बिकॉज मैंने इशारे से उसको बोला था इधर ही बैठना, like don't move, sit there. So he didn't want to move. So I said I'll come. तो मैं वहाँ गई, he was आराम से, पुलिस वाला खड़ा है, उसको बैग पकड़ा है, ऐसे वो आराम से बैठा हुआ है। Oh my And I wrote a post in my ये Forum for Autism. I felt like दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. The door is closing, but I cannot like. It was better. Otherwise, I would have just I would have recreated the scene. My friends are like, how could you laugh on I this? know. How could you I was gonna laugh ask you on now. this? I could. Like, What a spirit! Imagine. yeah, this is a That she diff- lighted you're a up the room. different spirit. Let me tell you. There are ample of examples. मतलब उसके लिए एक आपको अलग podcast करना पड़ेगा. My God, you're laughing it all away, but it's a difficult situation to be in. तो उसका तो ऐसे फिर हमको डायग्नोस पता चला, फिर दोनों साथ में ही चल रहे थे, तो फिर हम लेके जा रहे थे, फिर शिवम थोड़ा सा बोलने लगा, तो हमने स्पीच थेरेपिस्ट दोनों के ही रखी थी, बट सत्यम बैठ ही नहीं रहा है, तो उस पर क्या ही वर्क हो जाएगा, तो शिवम को थोड़ा सा डेवलप हो रहा था, पर सत्यम वाज एक्सट्रीमली हाइपर, शिवम वाज नॉट, बट बच्चे को देख के करते ही इज इमिटेटिंग। Yeah. तो फिर मैंने बोला चलो लेट्स बिकम इंग्लैंड, डिवाइड एंड रूल, लेट्स डिवाइड देम। तो मैंने उनको अलग अलग किया कि या सो आई डोंट कि ये इनको अलग अलग होना पड़ेगा, बिकॉज ये देखा देखी कर रहे हैं, इसकी औकात तो है नहीं, इसकी औकात है नहीं, तो हम इसको अलग अलग करते हैं। तो फिर मैंने उसको एक नॉर्मल स्कूल में डाला। नॉर्मल स्कूल भी ढूंढने के लिए मैंने एक रिक्शे वाले को हायर किया। पूरे दिन में मैंने 107 स्कूल घूमा, वन डे। आई सर्च फॉर 107 स्कूल इन बांडुप। मैंने उस रिक्शे पर को जो स्कूल पता हो, छोटा मोटा, माय फादर ने सर नहीं हम लोग वहां पे डाल देंगे। मैंने बोला डाल तो देंगे पैसे देके, फिर वो रोज मुझे बुला के खड़ा करेगा वहां पे, हमसे ना हो पाएगा ये। तो हम ऐसा कोई स्कूल ढूंढेंगे जो मेरे को जो ठीक लगे। सो 107 स्कूल में से मैंने एक स्कूल फिगर आउट किया जो छोटा सा मिडिल क्लास स्टॉल जैसा था, जिसकी बिल्डिंग बनने वाली थी, और इट वाज अ हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों था। और द ओनली थिंग आई लाइक्ड अबाउट द स्कूल इज कि प्रिंसिपल वाज कॉन्वेंट एजुकेटेड एंड शी डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट, नीदर डू आई। उस समय तक भी ऑटिज्म का हमें कुछ पता नहीं था, इतना पता नहीं था। तो आई सजेस्ट कि मैंने उसको बोला ये थोड़ा सा ना बोलने में इसको थोड़ा प्रॉब्लम है। आई डिडंट मैंने यूज ही नहीं किया ऑटिज्म, क्योंकि जब खुद को पता नहीं तो दूसरे को क्या ही गलत इन्फॉर्मेशन दे दोगे आप। तो ऐसे आप हम लोग इसको ट्राई पे रखेंगे स्कूल में, आप देखो 6 महीने के बाद में अगर नहीं हो सका तो फिर हम निकाल। और मैं यहाँ अंदर बात कर रही हूँ, शिवम इज लॉस्ट। हम बाहर आकर देखे तो शिवम है ही नहीं। मैंने बोला ये तो सत्यम के तरीके, ये शिवम कैसे सीख गया। तो देन वी आर सर्चिंग फॉर, फिर वो मेड जाके कहीं वो जो काम वाली थी उसने कहीं चॉल वॉल था। मैंने कहा दिस इज तो सिक्योरिटी रीजंस की अभी ये घूम जाएगा। फिर मैंने फिर भी वहां पे डाला। मेरे घर में कोई रेडी नहीं था उस स्कूल में डालने से, नहीं नथिंग डूइंग, ही गो टू दिस स्कूल, क्योंकि उस स्कूल में सब जो पेरेंट्स थे वो मिडिल क्लास के थे। आई वॉज थोड़ा सा अपर हैंड, आई वॉज वेल एजुकेटेड, तो मुझे पता था मैं पीडीए हेड बन जाऊंगी। फिर मैंने बोला अभी पर मुझे स्कूल में क्या होता है कैसे पता चलेगा। देन आई टोल्ड कि ये स्कूल पूरे दिन नहीं है। मैंने सीधे फर्स्ट स्टैंडर्ड में डाला। जूनियर सीनियर में पढ़ा चुकी थी घर में। अच्छा, ये होम स्कूलिंग किया था आपने? मैंने कर चुकी थी, हाँ, क्योंकि स्पेशल स्कूल जाता था मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लेती थी। ग्रेट। उसका हैंड ग्रिप अच्छा नहीं था तो स्पेशल एजुकेटर से वो रबर बैंड वो सब जो थोड़ा बहुत वो करा। तो मैंने बोला एज भी बड़ी होगी और हम लोग हाइट भी है, तो अभी छोटे में डाल के फायदा नहीं है। आई थिंक यू कैन कोप अप ऐसे करके, आई थॉट दैट। तो फिर उसको फर्स्ट स्टैंडर्ड में डाला और उसमें भी टर्म्स कंडीशन मेरे की, मैडम बोला 3 घंटे ही आएगा, क्योंकि वो 3 घंटे थेरेपी जाएगा ना सत्यम के साथ। तो क्योंकि मेरे को उसको अलग भी करना है थोड़ी देर, और मुझे ऐसा लगता था ये देख के सीखेगा ना बच्चा, तो ये तो बोलता ही नहीं, तो ये किससे बात करेगा या किससे करेगा। दैट इज माई थिंकिंग अबाउट ऑल दोस थिंग्स, जितना उस वक्त मेरे को सेंस था विद ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज। तो फिर हमने 3 साल फर्स्ट से थर्ड तक वो 3 घंटे स्कूल जाता था।
पहले 3 घंटे थेरेपी जाता था, आता था घर पे खाना खाता था, फिर 3:30 बजे जाकर छोड़ता था। और फिर मैंने 1 हफ्ते बाद मैंने स्कूल में टीचर से जाके पूछा कि आपके क्लास में सबसे गरीब बच्चा कौन-सा है? तो शी सेड वो झाड़ू वाली जो सफाई करती है ना उसका बच्चा है, उसकी फीस हम पे करते हैं। तो मैंने उसकी मदर से बात की, मैंने बोला आपका बच्चा ट्यूशन जाता है? तो बोलते नहीं। मैंने बोला मैं पढ़ाऊँगी उसको। एब्सोल्युटली सेल्फिश रीज़न। सेल्फिश रीज़न इसलिए कि हमें पता चलता रहेगा ना कि क्या हो रहा है स्कूल में। मेरा बच्चा तो बात नहीं कर रहा है समझ इतना गए। करके। और देयर वुड बी अ बडी काइंड ऑफ थिंग जो अभी बडी बोलते हैं। मुझे लगा तो कोई तो रहेगा ऐसे करके एंड दैट हेल्प्ड। आज तक वो लड़का लाइक यू नो ही ट्रीट्स हिम लाइक यू नो बहुत मतलब जब भी थोड़े से बड़े होने लगे तो बच्चे बुली करने लगे इनिशियली। तो ही वाज लाइक इसकी मम्मी को बोलूंगा मैं So he was his या प्रोटेक्टर buddy. कार्ड हाँ करके। तो इट वर्क यू नो। और मैंने उसको 10 तक मैंने वो लड़के को पढ़ाया। Oh. या 10 तक मैंने उसको पढ़ाया। Wow. हाँ क्योंकि मैंने बच्चे का शिवम ट्यूशन कभी गया नहीं, मैंने ही पढ़ाया 10 तक। उसके बाद ट्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो मैंने ही पढ़ाया उसको। एक बार मेरे को 8th में जब वो था डेंगू हो गया था मुझे, तो मैं मम्मी क्या गई थी 2 महीने। सो आई टोल्ड माय मदर इन लॉ कि नीचे क्लासेस है डाल दो उसको, कोई तो पढ़ता रहेगा कुछ तो हो रहेगा। तो वो 1-2 हफ्ते गया, फिर मैं थोड़ा ठीक होके आई तो ही वाज लाइक मैं नहीं जाऊंगा ट्यूशन, उनको कुछ नहीं आता पढ़ाना। पता है 3-3 घंटे बैठाते हैं मम्मी को। हाँ उनको पता ही नहीं है क्योंकि मैं कैसे पढ़ाते वक्त मैं उसको समझाती थी 45 मिनट से बैठना है बेटा, इससे ज्यादा हमारे पास अटेंशन स्पैन ही नहीं है, है ना। फिर आप जाओ फिर थोड़ा करके फिर हम बैठेंगे ऐसे करके। देखो पता है 3 घंटे बैठाते हैं उनको कुछ आता नहीं है। मैंने कहा, शिव अभी हमने पैसे भरे ना, अभी जाओ, भी तबीयत ठीक ही नहीं मेरी। तो ऐसे करके ही वाज लाइक और फोर्सिबली भेजा। 10 मिनट बाद फोन आ गया मेरे को, मैम आप प्लीज नीचे आओ गया। मैं फिर मैं नीचे गई तो वहाँ पूरे क्लास के साथ मीटिंग हुई। आपको पता है शिवम ने मुझे क्या बोला? तो मैंने बोला आई जस्ट होप कि ही डिडंट से एनीथिंग अब्यूसिव। सो शी सेड कि वो बोल रहा है कि आपको कुछ पढ़ाना ही नहीं आता। तो आई सेड मैंने ऐसे किया तो उनको वो बोल रहा है कि आपको पता नहीं है, आपको मेरी मम्मी से सीखना चाहिए पढ़ाना। हाँ आपको पता नहीं है, आपको पता है स्कूल में 45 मिनट्स का क्यों होता है क्लास? क्योंकि वो मूड चेंज करने के लिए कि एक ही बच्चा पढ़ नहीं सकता ना, तो पीरियड क्यों चेंज होता है ना। वो ये वो टीचर को बता रहे हैं। आपको पता है फिर एक ही दिन मैथ्स का पीरियड हो जाना चाहिए ना, फिर 7 से 12 बजे तक पढ़ाना चाहिए। क्यों नहीं? बिकॉज आई वाज टेलिंग ऑल दिस थिंग्स टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि ऐसे ऐसे कर। तो आई वाज लाइक, तो फिर मैंने बोला आई एम सॉरी ऐसे करके। फिर मैंने रास्ते में बोला शिवम ये ना सबको नहीं बताना। These are internal secrets. या आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन। तो ऐसे बहुत सारे मतलब मेरे पास ऐसे इंसिडेंट एंटीडोट्स है। You can write like a book which can, you know, parents can feel so light. I mean, you're making such difficult moments look so simple, but I can understand these are not simple moments. मैं वही बोली एक अलग पॉडकास्ट करना This पड़ेगा। can give so much of strength to Parents who are dealing with especially the young parents now. There are so many parents who are into depression, who are not able to deal with things, and such light-hearted conversions of your. At the same time, I had my round of depression. Shivam has written a beautiful post on Human Bombay, जिसके कितने लाखों likes आ गए. Where he talked about my depression, that my mom is not around. This is the time I should be there for him, there for her and all. Like you know, he was so there are times where क्योंकि हमें लगता है हम strong है, हमें लगता है. But it works on your mind. It works. कितने देर आप strong खड़े रहोगे? Correct. You feel क्योंकि आपको सिर्फ अपने लिए strong नहीं होना है. You have to be there for your children, Yeah. and that too now too. And staying in joint family. Having different people, having different ideas of raising kids. And having 2 children. on the Behavior spectrum. modification 0. I know. क्योंकि हम खुद सोच रहे हैं पर दादाजी ने बोला तो फिर वो होना चाहिए. चाहिए. ताई जी ने बोला तो होना चाहिए. Oh my God. I can completely imagine. So it's difficult. So there are rounds of, but ठीक है, that's a part of life. That should not be discussed much. But yes, it is there. It is there. हाँ है वो करके. But मैं मतलब जो मेरे को जानता है वो उसको उनके लिए accept करने में मुश्किल है कि oh how can she be depressed? Yeah, I mean, people must have. They have your Yeah. image, your Doubts, as Very this talkative and all. They haven't happy, ill and hearty. they haven't seen me day sleeping.
Yeah, I can get it. And when such kind of people are a little silent, there are so many people. क्या हो गया? What happened? So at that point of time, you need your calm, but मैं तो सबको बोलती हूँ मैं तो ट्रांस में गई थी. Don't ask me question about those. I was meditating mood. I can totally. I needed reset. ऐसा करते No, it's हैं. not. I know you laugh it out, but there's lots that is there inside. I can totally relate to this. Okay. तो ऐसे और अभी आजकल मैं सुनती हूँ ना जैसे यंग बच्चे ओ आई एम डिप्रेस आई एम लाइक डूड यू डोंट नो You don't डिप्रेशन का know डी भी what नहीं it- पता है तुम्हें. I know. I like how she said, dude, you don't know what depression is. डिप्रेशन का डी भी क्या होता I है. know. यू आर जस्ट फ्रस्ट्रेटेड एंड यू आर बिकॉज ये ना आजकल टर्मिनोलॉजी दे यूज इट वेरी लाइटली. Yeah. Yes. Yeah, response. हाँ. What was that? Trauma response. response. I like- Especially मतलब, Gen हाँ. Z, they've been using. जब एक थप्पड़ लगे ना तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा. मैं तो कह रहा अगर मुझे कोई ऐसा होता है. This generation doesn't know what thappad is. हाँ. They don't know that. पढ़ी नहीं है ना. पेरेंट्स ने मारी भी नहीं थी. तो बहुत सारे ऐसे हैं. बहुत मतलब मैं डे एंड नाइट बोल सकती हूँ मतलब ऐसे इंसिडेंट. शिवम जस्ट स्टार्टेड लर्निंग ट्रैवलिंग. तो बैंड्रा गया उसको यूट्यूब का कुछ फन फेस्ट का टिकट मिला. आई कैलकुलेटेड हिम एंड आई गिव हिम 100 रुपीज. आई नेवर मैंने कभी ज्यादा पैसे नहीं दिए. इसमें ही तुमको चलाना है. तुम दिमाग लगाओ मैं दिमाग भी लगाओ अपना. सो आई कैलकुलेटेड एवरीथिंग और सडनली मैं सत्यम के साथ मूवी हॉल में हूँ. ही इज कॉलिंग मी एंड सेइंग अरे मम्मी मेरे को ना टीसी ने पकड़ लिया. नहीं पुलिस ने पकड़ लिया. अच्छा पुलिस? ट्रेन में कहाँ पुलिस आ रही है शिवम? तो पीछे से फिर उसने फोन लिया और बोला कि नहीं मैं टीसी बात कर रहा. ही वाज सो Of course, yeah. तो मैंने बोला क्या हुआ. बोलते हैं वो फर्स्ट क्लास में चढ़ गया सेकंड क्लास की टिकट लेके. मैं नया ट्रैवलिंग सीख रहा था. ही डिडंट रियलाइज कि बैंड्रा साइड नहीं उसको नहीं रियलाइज हुआ. सो ऐसे ना तो बोल रहे हैं कि आपको आना पड़ेगा फाइन देना पड़ेगा. सी वेरी प्रैक्टिकल. आई एम इन अ मूवी थिएटर विद माई सन. आई यूज दैट मनी. आई यूज द टाइम. आई गो देयर आई पे फाइन. आई सेड कि नहीं सर पर मैं तो यहाँ पे हूँ नहीं. मैं तो ऋषिकेश में हूँ. सो ही इज लाइक नहीं फिर तो उसको फाइन आप अपने हस्बैंड को बोले. मैंने मेरा हस्बैंड तो यहाँ पे है ही नहीं शिप पे. हम लोग अभी ट्रांसफर हुए हैं मुंबई. सो वी डोंट नो एनीवन हु कैन कम देयर. तो बोला तो क्या मतलब क्या होगा फिर हम उसको रखेंगे. मतलब आप उसको संभाल के रखो. उसको ऑटिज्म है तो उसको कुछ हुआ ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा. सो इट वाज लाइक अ वार्निंग थ्रेट. बोला आप मेरे को धमकी दे रहे. मतलब नहीं मैं आपको सिर्फ सावधान कर रही हूँ कि उसको कुछ होना नहीं चाहिए. फिर थोड़ी देर के बाद फिर फोन आया मम्मी वो नहीं छोड़ रहा है. वो कह रहा है. मैं बोला शिवम चुपचाप बैठो 10 मिनट पर छोड़ देगा वो आपको. तो बोल रहा मम्मी यू कांट डू दिस टू मी. यू कांट लीव मी लाइक दिस. आई सेड थोड़ी देर में आ जाऊंगी शिवम. आने को भी आधा घंटा लगेगा. चुपचाप बैठो शांति से. तो आफ्टर 15 मिनट्स ही कॉल मी. ही सेड मैं छूट गया. आई सेड क्या हुआ. बोलता है अरे उसमें जेब पूरा खंगाला 60 रुपीज था ले लिया. तो आई सेड नाउ हाउ यू रीच हाउ विल कम बैक. बोलता रिटर्न टिकट है मम्मी और अब आप मेरे से पूछो मत. मैं क्या करूँगा मैं देख लूँगा. गुड फॉर यू. That is a victory. Yes. गुड फॉर यू. फिर वो जब रात को आया तो मैंने बोला शिवम कैसे आपने मैनेज किया. बोलते देखो मम्मी मैं ना मेरे पास 10 रुपीज एक्स्ट्रा पापा ने दिया था. तो मैंने जूस पिया. बैंड्रा में उतर के चल के चला गया मैं वहां तक. फिर चल के वापस आ गया. फिर रिटर्न टिकट तो था. फिर स्टेशन से मैं चल के आ गया. Brilliant. When I told this incident to my sister, she said, I have a normal kid. I would have left the office and ran. How could you sit so comfortably and tell कि हो जाएगा. I said, अरे वो क्या क्राइम किया था. क्या कर लेता वो टीसी. क्या लीगल राइट्स क्या है उसके पास. We need to take some classes. I know, and we need to call in a lot of the parents. I said क्या लीगल राइट से क्या कर लेगा भाई. वो क्या ज्यादा उधर रख लेगा. अरे मैं पीछे खत्म होंगे मैं जाऊंगी 30 रुपए दे जो पैसे दे रहे हो जो पैसे है वो तो पहले वसूल करो. How could you stay calm in that movie also? So that's what I'm telling ना कि I was always like this. ऐसा नहीं कि उस समय. तो I was always like this. कि ठीक है let's do some practical thing. तो मैंने काफी मतलब ऐसे मेरे घर वाले ही बोलते थे सत्यम I misplaced Satyam 12 times. Misplaced as in misplaced. Because क्या होता था कि मतलब या तो वो घर से ही चला गया. हम कुछ और कर रहे घर से चला गया. या फिर मैंने शिवम का हाथ टाइट पकड़ के रखा सत्यम समझ के और सत्यम को शिवम समझ के छोड़ दिया. Oh God. और फिर मैं बोल रही हूँ चलो शिवम एंड शिवम
मम्मी मैं इधर हूँ। I'm like, oh, what I have done this now? क्या कर दिया है मैंने। तो और फिर पुलिस स्टेशन में हम जाते थे एज यूजुअल, वो सब चलता था। तो एक बार मेरे को पुलिस ने मेरे को बोला कि मेरे हस्बैंड के साथ पुलिस बोला आपका बच्चा रोज ही घूम जाता है, हम लोग क्या यही करने बैठे हैं। आए वो मेरे को इतना गुस्सा मिला, क्या करते हो आप, करते क्या हो आप। माँ हस्बैंड से नहीं तू चल। मैंने बोला एक मिनट, आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, घूम ढूंढने जाते हो, आपका काम ये है अगर कोई लेके आएगा तो हमें फोन करने का, आप ऐसे गाड़ी निकाल के ढूंढने नहीं जाते हो। तो मेरे हस्बैंड लोग चल तो बोलता है, मैंने बोला नो, दे आर गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है ना, वो हमारी सेवा के लिए बने हुए, हमारे टैक्स से उनकी सैलरी जाती है। आई वाज टॉकिंग ऑल, मेरे हस्बैंड नहीं चल देखो बाद में देखो जेल में, कुछ भी मत बोलते, क्या जेल में डालेंगे, क्या जेल में क्या डालेंगे। देन फिर एक बड़ा ऑफिसर था, ही सेड कि मैम वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यू हैव टू फाइंड सम वे कि ये बार बार घूम जाता है, ऐसे तो क्या करे। तो बोलते नहीं कुछ ऐसे गले में कुछ डाल दो, ऐसे कुछ कपड़ों पे वो लिख दो, ऐसे वो कपड़े निकाल के फेंक दे तो क्या करोगे आप। तो फिर मैं एक दिन ऐसे सब्जी मार्केट जा रही थी, तो वो पता बर्तनों पे नाम लिखते हैं। हाँ. फिर क्लिप्ड मी ऐसे, अच्छा बर्तन। तो फिर मैंने बोला नहीं टैटू तो बहुत बुरा हो जाएगा, तो दर्द भी होता है कुछ, ये नहीं ये सब क्लियर नहीं हो पाएगा। तो सडनली मेरे को याद है, मैं अपने ज्वेलर के पास गई, मैंने बोला मैं कड़ा लेके आऊंगी, नंबर नाम लिख सकते हैं हम। तो बोला हाँ। तो फिर मेरे हस्बैंड ने नहीं उसको वो पहनाएंगे। मैंने बोला वो 1 सेकंड में फेंकेगा। तो फिर हमने कड़ा बनवाया, कड़े में उसने लिखा, मैंने फिर आया तो फिर मैंने बोला विजिबल नहीं है। फिर मैं ज्वेलर के पास गई, मैंने बोला इसको एनग्रेव करो, इसमें मीना भरो, तो विजिबल होना चाहिए। तो नाम, मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर, वो मैंने एनग्रेव कराया। उसके बाद वो 7 टाइम्स मिला उसके बाद तो और फिर वो कड़ा बन के आया ना। तो कड़ा नॉर्मली कैसा होता है, आप निकाल सकते हो, उसने 1 मिनट में निकाल लिया। हाँ. फिर मैं गई ज्वेलर के पास, मैंने इसको 2 साइज 1 साइज छोटा नहीं, वो हाथ में नहीं जाएगा। मतलब वो हम देखेंगे ना, तेल वेल प्लास्टिक डाल के अब कैसे घुसाते, फिर निकल ही ना पाए, फिर हम काटेंगे जब हमको काटना होगा। तो फिर हमने उसको 1 साइज छोटा किया, फिर हमने किया। उसके बाद में जैसा मैंने बोला कि वो हमें 7 बार मिला। उसके बाद नायर हॉस्पिटल में एक किसी ने देखा उसका कड़ा, दे आस्क्ड मी टू कम एंड सब पेरेंट्स को कि ऐसा बनवाओ। So you were actually the first one to come up with a buddy system जो आप कर रहे हैं, और ये कड़ा द आइडेंटिफिकेशन जो उस टाइम पे कोई नहीं सोचता था। So बोलते हैं necessity is the mother of invention. And we ourselves is mother. So कुछ कर दे सकते। Who else but mothers can only invent. तो all the जुगाड़्स। Yeah. You have that जिगरा छोड़ने का, and the child will learn themselves. Yeah. But वो माँ का दिल होना चाहिए। वही मेरे सब फ्रेंड्स बोलते हैं कि लेकिन हम लोग चाहते तो है पर हम कर नहीं पाते। मैं खुद मेरी डॉटर को नीचे तक नहीं छोड़ पाती। और मैं सत्यम को अकेले बाल काटने भेजती थी, और मेरे हस्बैंड अभी वो घूम जाएगा। मैं पल पल की खबर रख रही हूँ। मैं वॉचमैन को फोन, वॉचमैन नीचे पहुंचा, मैं फिर वो सलमान वो नीचे से आ रहे हैं, आप देखो आपकी दुकान पे जाना चाहिए, बाहर गया तो मुझे फोन करो। आई एम लाइक इन constant touch with them. Yeah, I'm not sending anyone. फिर वो वहां पे गया ना, निकला, अच्छा वॉचमैन वो आया, अच्छा ठीक है, ऊपर आया, फिर लिफ्ट के खड़ी हूँ। So it's like Yeah. But this is so difficult. But in this way he has learned. हाँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड तू चले जाना उसके साथ। मैंने बोला अरे मैं 12 साल तक जब उसके बाल कटते थे ना, मैं ऊपर आती तो मुझे समझ में नहीं आता था बाल उसके कटे कि मेरे, बिकॉज ही वाज नॉट सिटिंग एट वन प्लेस। तो पहले जब वो छोटा था तो मैं उसको ब्लेड के बैठे थी, तो मेरे पे ही सब बाल आते थे। फिर वो बड़ा हो गया तो मैं उसके आगे पीछे नाच रही हूँ, फिर वो बोल रहा है इसका मुंह स्ट्रेट रखो, ये करो वो करो। मैंने अभी बस हो गया, अभी लेट हिम गो, बैठ जाता है अभी उनको भी आदत हो गई है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे, हमारा भी थोड़ा सा हेडेक कम होगा, उनका हेडेक जाने और तो अभी तो वो अकेले ही चला जाता है। ही इज कम्प्लीटली नॉन वर्बल। वो नीचे से सब्जियां लेके आता है। एक दिन कुछ बिरयानी बन रही थी, मैंने उसको बोला कि सत्यम टमाटर तो खत्म हो गया, टमाटर ले आना। तो ही वेंट डाउन, वो जाके अदरक और मिर्ची भी लाया। आई सॉ अंदर अदरक और मिर्ची थी नहीं। अच्छा। सो ही ग्लांस्ड इट थ्रू कि और क्या जरूरत है चीज। आई विल थैंक गॉड आई हैव समथिंग। So good. Wow. That's because you've made him that way. Yeah, correct.
You have. I take zero credit for both the kids. Not for some things, but for their skills. For example, photography skills. कोई मेरे को बोलता है ना शिवम का, मैं बोली एक्सेप्ट 8,500 रुपया इन्वेस्टमेंट फॉर द सेकेंड हैंड कैमरा विच आई गिव, आई टेक जीरो क्रेडिट. क्योंकि मैंने कोई पैसे नहीं भरे, कोई कोर्सेज का नहीं, कुछ पैसे नहीं भरे, मैंने कोई उसको कांटेक्ट शेयर नहीं किया कि चल तू उधर फोटोग्राफी को चाह. उसे खुद ही अपने कॉन्टैक्ट ढूंढे, खुद ही अपने क्लाइंट्स बनाए, खुद ही कोऑर्डिनेशन किया. No, but it is because of your this kind of attitude. letting letting go. हाँ, and बिकॉज मुझे you मालूम था, yourself. मुझे मालूम था कि कब तक मैं उनके साथ रहेंगी. Yes. So they have to find their own ways. Better they do as early as they could. And a little bit of a breather for the parents also. ना how much will the mother do? I don't think we talk about this often. वो यही होता है कि आप ध्यान रखना, you do this, you take to the therapy. Here she's spoken so well about कि हम भी तो थोड़ा तो रेस्ट करेंगे ना. She's a human being after all. So it is extremely important that you let go a little bit. And so fine the kids have turned out to be. So Yeah. So मेरे फ्रेंड्स independent. वही बोल, अरे इनफैक्ट नो वन ऑफ माय फ्रेंड्स हस्बैंड कॉल्ड मी. वो बोल रहे कि कैन यू जस्ट टेक माय सन आउट इन द रेस्टोरेंट, बिकॉज हम जाते हैं रेस्टोरेंट, वो निकलता ही नहीं है गाड़ी से, वो अंदर ही बैठता है, हम उसको खाना बाहर बेचते, ही डजंट वांट टू कम. आई सेड आई टेक. और जो मेरी फ्रेंड है शी सेड नो ही विल नॉट गो. आई सेड यू जस्ट कम. फिर हम लोग सत्यम, मैंने बोला सत्यम का हाथ पकड़ के तू अंदर जाके बैठ, मैं देखती, वो आएगा नहीं. आई सेड दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस, आई विल मैनेज, ऐसे करके. और फिर मैं गई और फिर मैंने ड्राइवर को बोला कि इसको बाहर निकालो. तो ऐसा वो खड़ा तो हो गया बाहर, बट देन फिर मैंने ड्राइवर को बोला 1 सेकंड में गाड़ी लेके चले जाना, रुकना नहीं गाड़ी में. फिर वो गाड़ी लेके चला गया. ही डिडंट हैव एनी प्लेस टू गो बैक, बिकॉज गाड़ी है ही नहीं, तो तुम जाओगे Option ही कहाँ? नहीं, हाँ. तो मैंने बोला अंदर तो आना पड़ेगा. तो बहुत ऐसे फिर अंदर आके टेबल पे ये कर रहा है, वो कर रहा है, एंड माय फ्रेंड इज वेरी एम्बैरेस्ड, ऑकवर्ड. तो शी सेइंग कि कभी ये कर रहा है, वो कर रहा है. मतलब तू ही देख रही है, बाकी कोई नहीं देख रहा. और देख रहा है तो जस्ट भी ना, थोड़ा सा हम भी वो कैट वाले पोज में रहते हैं कि हमें कुछ नहीं दिख रहा, हम अपना दूध पी रहे हैं, बाकी हमें कुछ नहीं दिख रहा. तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम ही वेंट आउट. You leave no choice. This is what it is. yeah. And deal with it. Wow. Hats off. She puts Hats the off. Satyam Shivam Sundaram. She puts the Sundaram in the नहीं, इसका भी मेरे पास आपकी में इतनी आंसर है. कोई भी मुझे बोलता है ना ने बोला होगा पहले. अरे बहुत सत्यम शिवम है, सुंदर किधर है? You can't see me. आप definitely absolutely. सत्यम शिवम सुंदर, I'm the best person. Amazing. एक एक मूवी बार मेरे मतलब माय फ्रेंड इज कोई उनके हस्बैंड मतलब फॉरेनर है. ही केम, तो ही इनवाइटेड अस फॉर डिनर. सो सत्यम वाज लाइक zoop sap. तेरी अजी ना, तो बैठ ही नहीं रहा. तो एट द एंड ही सेड कि सुनीता, आई कैन नॉट होल्ड माय आईज आर पेनिंग because he's going here, he's going there, I'm looking here. So नहीं मतलब because उसके लिए कुछ नया है ना, तो he's like तो कुछ हो नहीं जाए ना. People have different mentality. तो he's saying कि ये दोनों में से कौन ज्यादा मस्ती खो रहा है. I said wait. He laughed like anything. He said you're right. I said, और मैंने कभी नहीं, मतलब मैंने ये नहीं, मतलब मेरी मदर इन लॉ या कोई भी ऐसे बोलेगा ना, सत्यम कैसे कुछ भी किया ना ऐसे फेंक देगा, ऐसे कुछ भी किया ना फेंक देगा. एंड फिर उसको उठवाना इज आधा घंटे का काम. मैं 2 मिनट में तो मैं उठा के दे देती हूँ. ऐसे नथिंग डूइंग, यही ओनली हैज टू गेट अप, उसको ही करना है ये. सो देयर वर जॉइंट फैमिली हैज डिफरेंट प्रॉब्लम, बट आई स्टिल सपोर्ट जॉइंट फैमिली with little of कि उनकी तरफ से cooperation हो, because they are blessed to have दादाजी, they are blessed to have दादी. Absolutely. I still feel, पर थोड़ा सा change उनके मतलब अभी आने वाले लोगों में है. Now, where are the joint families? Barely. Barely. So, we did see a situation, ma'am, where the parent is given the diagnosis. Yes. Yeah, your child has autism and nothing can be done. Yeah. And they'll stay the way they are. This is really heartbreaking for parents. You being a developmental pediatrician, I would love to know, because we have a lot of parents who have come and told us that yes, this is how we are, given the news. Yeah. So, according to you, how this should be? Yeah. Right.
say parents always remember how many years back, for example, they always remember what happened in the first meeting, how the diagnosis was given. They might forget about therapies, fir kya hua, this and that later, but they always remember the words, exact words the doctor had used. So it is extremely, extremely important to be empathetic. I say be proactive, because you can't delay things here. There is really no space to delay. It is as you need to be as early as you can be. So you have to be proactive about it. I make it a point that I am honest, but I also give some hope. So 2H's I always think of when a parent comes to me: honest, 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 but give them some hope. Don't tell them ye nahi ho sakta. So then they would stop coming back. They would be like, "Acha, the doctor has said that this cannot happen to my child." So they would never even give the kid therapy. Correct. So I make it a point that they always have some hope when they leave the clinic. That is why it's important that you only not focus on the deficits of the kid. You focus on what the kid is good at, and autistic children, for example, are good at so many other things. So once you've spoken about the deficits, it is important that you also talk about what the kid is good at. And parents are normally really happy once they figure out, okay, these are the things that the kid is good at. Having said that, I always push in for early intervention, because I've seen it working and it works beautifully. Yeah. And I feel like even though the diagnosis may be heartbreaking and the parents may not be able to accept it, all of that, I understand the emotional part of it. It is extremely important for the caregiver or the guardian or the parent to understand what autism is. If I feel that this child might have autism, after I've done a battery of tests, I break it to the parents. I am not going to hide it from you, because you are the ones who are going to take the child to therapies, do everything. So you need to know the diagnosis. So I think it has to go, it's a double-edged sword, to be honest. Honest and hope. Both these things need to go together. Wow. Yeah. This has been put across really well. Yeah, I agree. You have to put in the words honestly, but yeah, hope. There should be hope to back it up. Yeah. Because life itself is a hope. Yes. You can't say, you can't deny ki, you can't deny ki, just say, you can't deny. You don't know Right. what future holds. So true. So Yeah. true. Yeah. So yes, this is a very important aspect that should go along with the honesty. Yeah. So, ma'am, one of your child is non-verbal. First and foremost, I would love to know, how have you taught him then to communicate? We have understood with a lot of podcasts that we have done now that speech is not the only way of communication. There are many other ways. So I would like to know from you. I would love to know from you, how have you taught him how to communicate? See, non-verbal doesn't mean non-communicative. Exactly. Indian Sign Language. I have Satyam Sign Language. This is what I was waiting for. So he has created his own sign languages. For example, if I give you आपको मैं कढ़ाई दूँ और मैं बोलूँ पू पू पू, क्या चाहिए उसको? कढ़ाई दूँ, तेल डाल के, और मैं बोलूँ पू पू पू, पूरी. Oh. कुर्सी पे बैठूं और दोनों पैर ऐसे हिलाऊं, झूला. When you sit on swing. तो he has created his own sign language, जो कि हम घर वालों को नहीं, हमारे नीचे बीचे वालों को भी समझ में आ जा रही है. तो हमने कोई साइन लैंग्वेज नहीं, कुछ ऐसे कुछ मैंने कुछ नहीं सिखाया. उसने जो यूज किया, हमने वो क्यों लिया, फिर हमने उसी पे वर्क किया कि यही अब झूला बोलना है तो तुमको वो साइन तो दिखाओ भाई, नहीं तो हम नहीं ले जा रहे. Okay. तो उसका अपना साइन लैंग्वेज है, सत्यम साइन लैंग्वेज. इनफैक्ट मेरे को बहुत लोग बोलते थे बच्चे को पेट दर्द होगा, कैसे बताएगा. ही कम्स एंड सेज. Yeah. शिवम रोता था, कुछ बोल नहीं पाता था. मुझे ऐसा लगता है अगर सत्यम बोल पाता, ही इज मच मोर इंटेलिजेंट देन शिव. एक सिंपल एग्जांपल दूंगी मैं और मेरे हस्बैंड शादी में जा रहे थे, एंड वी डिसाइडेड विल नॉट टेक एनी ऑफ, we just want to go आराम से, which is not possible. So we said कि we'll leave both of them. They like Shivam, नहीं मम्मी मैं तो जाऊँगा. He's crying. नहीं, I'm just getting ready. नहीं करके मैं लिफ्ट के आ गई. सत्यम रेडी होके खड़ा हुआ है. Now what do? We just take him. There's no option. So smart.
वो ये चिल्ला ही रहा है, दूसरा रेडी हो खड़ा हो गया है, तुम लेके चलोगी। I think he has your traits. He doesn't give you a choice. That's what so like, you know, तो अभी आप क्या करोगे? तो उसने अपना दिमाग लगाया। अभी हम बस में जा रहे थे मम्मी के यहाँ पे, तो सत्यम बहुत घुमा है बस में, क्योंकि थेरेपी के लिए। शिवम वो बोलते हैं ना, मेढक का कुआं है, उसका स्कूल भी इधर इधर, सब इधर ही इधर घूम रहे, इधर ही, तो ट्रैवलिंग ज्यादा नहीं हुआ उसका। तो सत्यम को पूरा बस का सब आइडिया आ गया था। आपको पता है बस में आप कभी ट्रैवल किया होगा, तो अगर कोई उठने वाला होता है ना, बैग पैक करता है, ईयरफोन निकालता है, सो दैट यू नो ही हैज फिगर्ड इट आउट समथिंग। तो बहुत बस में भीड़ थी, तो शिवम बोला, अरे मम्मी को आंधीवली तक जाना है, जग मतलब थोड़ी देर में मिल जाएगी शिवम, मिल जाएगी कर। और शिवम जिधर खड़ा है ना, वो उठने वाला है, एंड आई डिडंट से, बिकॉज हम लोग बात कर, सत्यम इज फिगर्ड आउट। वो उठा और सत्यम ऐसे शिवम को पास करके बैठ गया। शिवम लाइक मोटा ऊट सीट है ऐसे, नथिंग, वो बैठ गया है। मम्मी मैं खड़ा था, मैंने पर उसने देखा शिवम बैठ गया, he was quick. So he's much more intelligent, much more observant. Yeah. The only thing I feel कि अगर वो verbal होता, और अगर हमको पहले समझ में आता कि इसको जो ADHD है, हम उसको दवाई से कंट्रोल कर लेते, जो हमने बाद में किया, तो शायद things would have better off. हाँ, क्योंकि हमें नहीं पता था कि देखो, अभी भी दवाई देने में लोग बहुत हिचकिचाते हैं, अभी भी। Yes. अभी भी डायबिटीज की दवाई हमारे हस्बैंड खा लेंगे, पर बच्चों को नहीं देंगे, है ना। तो हमको भी तभी ऐसे ही था कि क्या दवाई से होगा। फिर बाद में एक स्टेज ऐसा आया, मैं बहुत बहुत मतलब मजाक ही बनाती हूँ हर चीज का, तो मैं बोलती हूँ कि सत्यम स्पेशल स्कूल में भी ब्लैक लिस्टेड था। स्पेशल स्कूल में ब्लैक लिस्टेड था बिकॉज ही यूज्ड टू बाइट। हमको एक काटा, दूसरा जब तक मेरे फ्रेंड्स लोग बोलते थे, ये ना तेरे हस्बैंड कुछ मारते वारते और तू ऐसे बच्चों का नाम लेती। अच्छा, विश ही कुड डू दैट टू मी, ही डेयर दैट टू मी, ही cannot. So only the privileged people who can do this are the kids. my son is. तो वो वहां पे जाता था, तो फिर वो दूसरे बच्चों को काट रहा है, मार रहा है। तो वह स्पेशल स्कूल में भी वो 5 घंटे हो नहीं रहा था, आधे घंटे 1 घंटे आई यूज्ड टू सिट, और ही वाज सो क्विक इन एवरीथिंग। स्पेशल एजुकेटर सब आधे घंटे का अपना पूरा उसने सब वो रखा हुआ है कि ये करेगी, वो ऐसे 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 करके खत्म करेगा। अब वो स्पेशल एजुकेटर से सोच रही है अब क्या बाकी करूंगा? 25 मिनट क्या करूंगा। सो बिकॉज ही इज सो क्विक, ही इज सो क्विक। तो मुझे हमेशा अभी भी लगता है, मैं तो बोलती हूँ शिवम को, बस भगवान ने तेरे को जबान दे दी, नहीं तो अक्लमंद तो यही है। Oh my God. यू नो, इनिशियली हमारे पास मोबाइल नहीं होता था, तो मैं क्या करती थी, सत्यम को ऐसे रूम में बंद करके, फ्रस्ट्रेशन तो है ना, तो मम्मी को सत्यम ने ऐसा किया, इसने ऐसा बोला, इसने वैसा बोला, इस टू टॉक, तो और फिर मैं अंदर बंद कर देती थी, क्योंकि वो आएगा तो बात नहीं करने देगा, लैंडलाइन एक जगह फिक्स्ड है, तो बात नहीं करने देगा। तो क्या करें, दरवाजा बंद करके, तो मैं बंद करके आई हूँ, सडनली बाहर है। मैं सबके रूम में जाके, आपने दरवाजा खोला, आपने दरवाजा खोला, नहीं किसी ने दरवाजा खोला। हाउ ही केम आउट नाउ, मेरे को तो बहुत है कि कैसे बाहर आया है ये। तो मैंने अंदर उसको डाला, मैंने कहा सत्यम बाहर आओ। हमारे दरवाजे के ऊपर वेंटिलेशन है, वो ऊपर चढ़ा, उसने हाथ डाला और उसने कड़ी खोली, बाहर आया। Oh God, brilliant. फिर मैंने क्या किया, मेरी जेठानी का लड़का था, मैंने उसको अंदर डाला, ही इज 4 years elder to them, अंदर डाला, मैंने बोला रौनक बाहर आ जाओ। तो फिर बोल कैसे, दरवाजा बंद है, यूज अ ब्रेन ना, नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा। ये इंटेलिजेंट जाओ बेटा दिखाओ कैसे निकल रहे हैं। Oh my God. तो his motor skills are excellent. And he finds his way out. Yeah, he finds I his think you have taught him. that, इसीलिए 12 बार वो घर भी वापस आया। Find his way out. 12 बार is so. Yeah. She's emphasizing that. घर भी वापस आया। बिल्कुल। और वो सिर्फ वो 13 साल में 12 बार घुमा है, और लास्ट बार के बाद वो कभी नहीं घुमा है, बिकॉज उसके बाद वो कुत्तों से डरने लगा। तो आई फिगर्ड इट आउट कि शायद कुत्तों ने उसको भगाया होगा। he understood कि what is not so pretty out, क्योंकि कि अभी नहीं भागना चाहिए, बाहर भी खतरा है। हाँ, बाहर भी खतरा। और मुझे याद है वो सुबह से घुमाता रात तक, तो मतलब सुबह से रात तक, ये दिस वाज मतलब सबसे लॉन्गेस्ट मतलब ही लॉस्ट हिम। और जब हमने पुलिस, वो घाटकोपर में घुमा, हम रहते हैं भांडुप में,
घाटकोपर में घुमा है, हम घाटकोपर स्कूल लेके जा रहे हैं, वहाँ पे मैं कुछ बुक ले रही हूँ और मैंने आज जैसे मैंने बताया ना, मैं शिवम को हाथ पकड़ के रखी हूँ सत्यम सोच के, मैंने बोला शिवम चलो, मम्मी मैं दो, आई सर व्हाट रबिश व्हाट, और फिर मैं उनको ढूंढ रही हूँ ऐसे ऐसे करके, फिर हम पुलिस स्टेशन गए, वहाँ कंप्लेन किया, ढूंढ रहे, फिर हस्बैंड आए मोटरसाइकिल पे, फादर इन लॉ सब ढूंढ रहे, 3-4 घंटे पे एवरीवन इज एग्जॉस्टेड। मेरे हस्बैंड बहुत क्यूटली गए किसी दुकान पे, कोल्ड ड्रिंक, मैंने तेरे को कोल्ड ड्रिंक की पड़ी है, हाँ बताओ मुझे कोल्ड ड्रिंक की पड़ी है, इस थिंकिंग कि अभी ढूंढना तो है, आप लाइक नो वे ऐसे करके, फिर हम बाद में गए तो फिर वो इंस्पेक्टर बोल रहे आप जाओ मैम, वो आएगा तो ढूंढे, मतलब हम लोग घर पे भेजाएंगे, ऐसा नहीं वो जिंदा या मरा मैं बिना लिए जाऊंगी नहीं मैं, बिकॉज एक बार ना देखो आदमी आपके सामने कुछ भी हो जाए, घुमा लड़का मेरे को मतलब नहीं हो, बिकॉज आई हैव सीन पेरेंट्स यू नो दे आर सर्चिंग फॉर 10 years। मैंने बोला वो बर्दाश्त नहीं है मेरे को, मरा जिंदा मैं तो लेके जाऊंगी, पर सडनली माई मदर इन लॉ कॉल्ड कि 10 बज गया, शिवम खाना नहीं खा रहा है, बिकॉज ही सॉ तो ही इज वरीड, और मैंने मेरी फ्रेंड के साथ उसको भेज दिया, तो आई सेड चलो लेट्स फीड हिम एटलीस्ट, तो मैं उसको खाने खिला रही थी, तब तक यहाँ पे फोन आया, मैं गई, तो अगर आप मेरी जगह होते तो आपको बच्चा दिखा, आप क्या करते? इतने देर के बाद आपको बच्चा दिखा है पुलिस स्टेशन पे, बाकड़े पे लेटा है, आप क्या करते? मैम ने मारा होगा मुझे लगता है, Absolutely, and मैं फटाक से जाके मैंने एक थप्पड़ लगाया उसको, वो इंस्पेक्टर आया, मैंने बोला you stay out of it, you just stay out of it, ऐसे करके वो रोना बाद में आया, पर the first that how could you miss yourself, खुद ही कैसे कूद गए आप, मतलब खुद पे गुस्सा था कि मैंने गलती की है, पर अभी क्या करें ऐसे कर, तो उसके बाद में अभी एज अ मदर मुझे लग रहा है सुबह से कुछ खाया नहीं, आई ही डूइंग दिस, और हमारा हाल ऐसा है पूरे पसीने में पूरे दिन से घूम रहे हैं, और मेरे हस्बैंड क्या घर जाके पूरे सज धज के हो गया उनका, और मेरे को टाइम नहीं है, कोल्ड ड्रिंक पी ली, आई एम इन वेरी बुरा अवतार, एंड सत्यम इज इन ऐसा यूनिफॉर्म जो स्कूल का था, वो थोड़ा बहुत ऐसे बाहर निकला हुआ है, शर्ट पैर में शूज नहीं है, चप्पल नहीं है, बाल वाल सब पूरा पसीना वसीना हो गया, अब मेरे को पेशेंस नहीं है कि मैं घाटकोपर से बाहर डूब जाऊँ, ऐसे नथिंग डूइंग, हम इसको रेस्टोरेंट में लेके आके कहीं भी खिलाते हैं, मुझे ये नहीं पता हम दिख कैसे रहे, तो हम रेस्टोरेंट में अंदर गए, हम अंदर, और जाते ही ना मैंने बेटा जल्दी जल्दी इधर इधर ऐसे करके, जैसे भुक्कड़ लोग होते हैं ना, आप ऐसा करो सूप ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, वो लो, उसने ऑर्डर तो ले लिया, और वहाँ पे ना स्टीवर्ड खड़ा होके, स्टीवर्ड जो रहता है ऑर्डर, वो ऐसे देख रहा है मेरे को, सडनली आई रियलाइज, आई लुक्ड एट मी, आई लुक्ड एट सत्यम, तो मैंने उस स्टीवर्ड को बुलाया, मैंने बोला आप गलत ना समझो, हमारा लड़का खो गया था, तो हम इस हाल में, फिर मैं जाके वॉशरूम में जाके उसको, बिकॉज आई कुड सेंस है कि उसको लग रहा है ये आदमी तो बहुत सही लग रहा है, ये आदमी तो सही लग रहा है, पता नहीं कौन सी औरत, तो कौन से बच्चे को कोई दया का खाना खिलाने ले आया है, कैसे? तो मैंने फिर आई एक्सप्लेन हिम, मैंने बोला कि भैया आपके लुक्स दिख रहे हैं कि आप हमको कैसे जज कर रहे हो, मतलब, और अभी भी वो बिना कुछ भी मतलब लिख के नहीं देते, पर वो सामान सब लेके आता है लिस्ट से, ही डजंट अंडरस्टैंड मनी कॉन्सेप्ट, उसको समझता नहीं, 10 रुपए 200 रुपए तो वो नहीं इसको समझेगा ना, मैंने इसको कोशिश की, सबको सब कुछ समझना जरूरी नहीं है, करेक्ट, इट्स ओके, पर वो सब लेके आएगा, क्योंकि आजकल सो देखो आप जाओ तो सब दिखता है सामान, डीमार्ट में जाओ, इधर जाओ, आपको दिखता है, तो ये करके वैसे करके वो सामान सब लेके आता है सबका, तो हमने उसको कुछ नॉन वर्बल ऐसे कुछ सिखाया नहीं, उसने हमें अपनी साइन लैंग्वेज सिखाई, एक्सीलेंट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक्सीलेंट, मतलब इंटरनल पेन भी वो आपको बता देगा, ऐसे बुखार है, अभी इसमें कौन सा आपको मतलब ये किसको समझ में नहीं आएगा, वो ऐसे दिखा रहा तो क्यों नहीं समझ में आएगा। एक बार मुझे याद है मुलुंड में, भांडुप से मुलुंड में नया मॉल खुला था, तो वी टुक हिम, अभी भांडुप से मुलुंड दूर है, हाँ, तो हम लोग उसको 1-2 बार लेके गए, तो उसको अच्छा लगा वो कॉन्सेप्ट मॉल का एंड ऑल दिस थिंग, हम उसको भांडुप में ही ढूंढ रहे, एंड सडनली आफ्टर दैट कड़ा, सडनली आई गेट अ कॉल, उनको लग रहा है मैं उसी मॉल में ऊपर नीचे हूँ, मैडम आप कौन से फ्लोर पे, आपका लड़का 3rd फ्लोर पे वो ग्रोसरी में यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, आई सेड पिलाओ, जो खाता है खिलाओ, हम आ रहे, मैंने उसको ये नहीं बोला मैं अंदर नहीं हूँ, फिर हमने रिक्शा लिया, वहाँ पे गए, वहाँ पे भी एक थप्पड़ खाया वो, और बिना मतलब नाइट सूट में गया था, पैर में चप्पल भी नहीं थे,
इतने दूर वो चल के चला गया था। फिर एक बार मुलुंड में कोई, हम भांडुप में ढूंढ रहे हैं, मुलुंड में रेस्टोरेंट से एक लड़के ने फोन किया मुझे, कोई कॉलेज का ग्रुप बैठा था, वो चल चल के थक गया होगा, रेस्टोरेंट में देखा उसको, बोल रहे हैं मेरे को बड़ा सांभर खाना है, तो वो वेटर भगा रहा था। तो अब नाइट सूट में तुम जाओगे या तुम ऐसे कपड़ों में ऐसे दूर जाओगे पसीने वाले, तो उनको तो कौन एंटरटेन करेगा, पर वो लड़कों को कुछ तो लगा, दे फाउंड समथिंग, और फिर हाथ पकड़ा तो वो कड़ा था, तो देखो बोलता सत्य, मैंने किधर है, हम तो ढूंढ रहे किधर, तो बोला वो ये रेस्टोरेंट में है। मैं अब बैठो, मैं ले आ रही हूँ। फिर मैं आ गई, मैंने उनका भी बिल पे किया, ऐसा, इट वॉज वेरी नाइस ऑफ यू नो, रेस्टोरेंट वाले भगा रहे थे, आपने उनको बिठा के खिला दिया है ना। बोलते नहीं, हमको लगा कुछ तो, मतलब हाथ पकड़ा तो कड़ा है, नाम है, और वो बोल, but there are good people, Yes, there are good yes. people around, there are good people. And we only talk about See, the bad ones. I always say, you know, कि शिवम के स्कूल, like it cannot go, like he's blessed, he had the best teachers. उसके स्कूल में का मतलब, मेरे को याद है कि मैं लेने जाती थी ना उसको एक दिन, तो वो ऊपर से आओ मॉम यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, ये ऐसे ऐसे कुछ बकवास बोलता रहता था। एक दिन मैं गई, ऐसे पैर फैला के बैठा था दोनों, और दो लड़के उसका लेस बांध रहे थे, बिकॉज उसको लेस बांधना नहीं आता था, बहुत साल तक नहीं होता था। एंड आई वाज लाइक आई एम लीस्ट बॉदर्ड, मैं लेस बांध देती थी, लूज ऐसे कर ले, क्या करना है, बेलकोट के शूज भी मिलते हैं। तो फिर मैं गई, मैंने बोला क्यों लेस बांध रहे हो, तो बोलते आंटी उसको आता नहीं ना लेस बांधता, एक लड़का बोल रहा है, तो दूसरा लड़का बोला नहीं, उसने बोला नहीं बांधोगे तो मम्मी से कंप्लेन करूंगी। ऐसे तेरी मम्मी गुंडी है तो क्या उनको धमका रहे है, तो तेरी मम्मी गुंडी है, ऐसे नहीं आप पीटीए हेड हो ना, फिर वो ऐसे, फिर टीचर ऐसे, ये बहुत ज्यादा एडवांटेज हो जाता है इसके लिए। फिर एक दिन वो जो मैंने बड़ी बोला ना, वो आया, और वो लेट आया ट्यूशन को। बोले क्यों आप देर से क्यों आए, तो बोल रहे कि टीचर ने बहुत होमवर्क दिया था। मैंने शिवम होमवर्क, टीचर्स को नहीं, कुछ भी नहीं बोलती टीचर, ये तो ना हो पाएगा। फिर मैंने कुछ नहीं बोला, मैं फिर गई, दूसरे दिन मैंने टीचर को बोला ट्रीट हिम एज पार अदर किड्स, इफ इज नॉट, तो आप अगर दूसरे बच्चों को खड़ा करते हो बेंच पे बाहर, इसको भी खड़े हो। सेकंड मैं बोल के आई, ये घर आया, आते ही बैग फेंका, क्या बोल के आए हो आप क्या बोल के आए हो आप, मेरे को फर्स्ट टाइम पनिशमेंट मेरी लाइफ में, फर्स्ट टाइम पनिशमेंट। And he also figured कि मम्मी ने कुछ बोल दिया है। He knows this smart ये मम्मा ने किया है। He saw me ना, अच्छा। he saw me करके, और उसने वो भी बात सुनी थी ना कि वो बता रहा है कि इसको नहीं कुछ बोलते हैं, सो उतना उसने 2+2 कर लिया। अच्छा क्या है मतलब, अब स्कूल में पढ़ोगे और स्कूल के रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो। और मैं हर साल जाती थी, मैं ये सब पेरेंट्स को बोलती हूँ जो मैंने देखा है, मैं हर साल जाती थी, स्कूल में बैठती थी, मैं बोली अगर आपको नहीं लगता ये नेक्स्ट क्लास में जा सकता है, डू नॉट प्रमोट इट, डू नॉट, आई वुड लाइक हिम टू रिपीट, आई डोंट माइंड, क्योंकि हम तो वो उम्मीद पे थे कि ये कभी स्कूल जाएगा ही नहीं। तो हमारे लिए तो सब कुछ बोनस है, हमारे लिए लाइफ बोनस है, है ना, तो हमें सैलरी नहीं मिलती, हम बोनस पे चलते हैं। तो मैंने बोला ये, पर वो टीचर हमेशा कहती है नहीं ही इज डूइंग ऐसे करके। तो फिर एक बार पेरेंट्स टीचर की मीटिंग थी, तो टीचर ने ऐसे कैजुअली पूछा, 5th-6th में था शायद, टीचर ने कैजुअली पूछा कि कौन कौन बच्चे ट्यूशन जाते हैं, तो सारे बच्चों ने हाथ उठाया, सिर्फ वो उसका जो फ्रेंड था और वो, उसने हाथ नहीं उठाया। शिवम घर आके बोल रहा कल से मैं भी ट्यूशन जाऊंगा, बिकॉज ही थॉट ही इज डूइंग समथिंग रॉन्ग बाय नॉट, बिकॉज मेजॉरिटी पीपल, एक नॉर्मल परसेप्शन ऐसा है जो 90% जो लोग ज्यादा लोग करते हैं, मतलब वो सही कर। तो आई मेड हिम अंडरस्टैंड इट्स नॉट नेसेसरी कि मेजॉरिटी पीपल व्हाट दे आर डूइंग इज राइट। अगर एक जन भी सही कर रहा है तो वो सही है। फिर एक बार वो फेल हो गया, हम रिपोर्ट कार्ड लेने गए, तो उसके पहले का जो लड़का था, उसकी मम्मी, देखो चॉल मेंटालिटी मैं नहीं बोलूंगी, पर वो उसके उस लोग वैसे लोग हैं ना कि टीचर मारे उससे पहले माँ लोग मार देते। तो वो टीचर कंप्लेन करने से पहले वो 2-4 थप्पड़ पड़ गया उसको, लड़के को, और ये डर गया। अभी इसको पास फेल का मतलब भी नहीं मालूम, ये मेरी शक्ल की तरफ देख के डिसाइड करेगा कि मैं पास हो रहा हूँ कि फेल, क्योंकि नंबर्स नहीं समझ में आ रहे, इतना नहीं, कुछ नहीं पता चल रहा। तो एंड ये फ्लंक्ड 3rd स्टैंडर्ड में, क्या फर्क पड़ रहा है मेरे को, फ्लंक हो रहा है नहीं हो रहा है। सो मेरे को, और वो फिर बाहर आके बोल रहे ऐसे करके, मैंने बोला, तो बोल रहा है आपने देखा उसकी मम्मी ने मारा, फेल हो गया वो। मैंने बोला हाँ। फिर मैं चलो चलते ट्रीट मैकडॉनल्ड्स में जाते,
हम खा पी के घर गए, मेरी सास ने पूछा क्या हो गया, मैं फेल। मैं फेल हो गया था क्या मम्मी? तो फिर मेरे को फिर ट्रीट मिली, मैंने बोला इट डजंट मैटर टू मी, इट डजंट मैटर टू मी, क्या फेल हो गया, इट डजंट मैटर, वो मेरे लिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ऐसे करके। पर मैं देखती हूँ पेरेंट्स जो बहुत पैनिक हो जाते हैं, वो स्कूल में नहीं कर पा रहा, वो ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा। We are focusing so much on academics. पहले तो आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, यू शुड बी ग्रेटफुल। Yeah. मैं जब मलाड जाती थी, मैंने बोला फर्स्ट स्कूल था, तो वी यूज्ड टू सिट आउटसाइड। एक पेरेंट थी, तो मैं गई उसके पहले, मतलब वो पेरेंट शायद 2-4 महीने से वहां पे आ रही थी, तो शी वाज लिटरली आर्गिंग विद द जो भी कोऑर्डिनेटर थी, 4 महीने से आ रहे, इतने पैसे दे रहे हम, हाँ 4-4 घंटा आप बिठा रहे हो, उसको ABCD लिखनी नहीं आ रही, उसको ये नहीं करना, वो नहीं, एंड शी इज लाइक ट्राइंग टू काउंसिल ऐसे कर। फिर वो चले गए, फिर हम बैठे थे, फिर मैंने उसको बहुत धीरे से पूछा, मैंने बोला कितने साल का है आपका बेटा? तो बोली 11 साल का। मेरे बच्चे के भी 6-6.5 साल के थे। ऐसे अच्छा, वो खुद जाता है टॉयलेट? नहीं। मैं खुद खाना खा लेता? नहीं, खिलाना पड़ता है। मैंने बोला आपने अपना काम तो किया नहीं है, 24 घंटे आपके साथ आपका लड़का है, आपसे किसी ने क्वेश्चन किया है? आप खुद से करो। ABCD ना वो 25 साल में पढ़ लेगा। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र सुना है आपने? पहले बेसिक सिखाओ। Yeah, life skills are so This important. is the basic exact सिखाओ। same thing I tell parents and what our seniors have taught us. ये हम सेम चीज बोलते हैं कि आप स्पेशली इन इंडिविजुअल्स विद ऑटिज्म, आप उनको रटवा दो, वो आपसे और मेरे से बेटर बता देंगे कोई भी चीज। बट एप्पल मैंगो बनाना पोटैटो, A फॉर एप्पल, A फॉर एरोप्लेन से क्या लाइफ निकलेगा? क्या वो रेड में रेड डालो दिया, उस, क्या yes, करना है? yes, उससे आप क्या करना है मुझे? I know. right. द डे आई अंडरस्टूड कि ये अभी बहुत लंबा चलने वाला है ये सफर। मैंने वो ABCD सत्यम के लिए तो बुक बंद कर दी थी। आई सेड कि मेरे ख्याल से 15-16 साल का हो जाएगा तो मैं नहीं इसको वॉश करना चाहूंगी, मैं इसको नहलाना नहीं चाहूंगी, Correct. और मैं कोई केयर टेकर रखूंगी तो भी मुझे नहीं अच्छा लगेगा। मैं ये नहीं चाहूंगी कि मैं कहीं जाऊं तो अरे उसको किसी ने खाना खिला दिया क्या, Yes. ये नहीं चाहूंगी। मैंने आपको बोला भी ना कि मैं कभी नहीं पूछती हूँ फोन करके घर पे उसने खाना खा लिया क्या, कभी नहीं, पहले भी नहीं पूछती थी मैं, कभी नहीं पूछती थी मैं। तो मेरा ऐसा था, तो मेरा बहुत बेसिक था कि मेरे दिमाग में मैंने ऐसे गोल रखा था, बहुत शॉर्ट गोल, 3 साल का ना, तो टॉवेल बांध के बाहर आना चाहिए। 4th बर्थडे हो जाएगा ना, तो 4th बर्थडे तक ये तो आ ही जाना चाहिए, 5th बर्थडे तक वो वॉश करके पूरा अपने आप बाहर आना चाहिए। Wow. Yes, this is ये, and मैम ऐसा हुआ फिर वो कर पाया? हाँ यार, Brilliant. मैं वही कह रही हूँ ना, मैं अपनी मम्मी के साथ डैडी के साथ घूमने चली जा 2-2 महीने, बीमार हो गई तो चली गई, पर ऐसे घर में किसी को ये नहीं लगा कि अरे अब ये हम पे, हाँ हम पे बोझ डाल के चले गए, ये नहीं लगा। Wow, this is such an important thing to take note of, that independence is the first thing to be taught rather than focusing on 4 घंटे के लिए किधर आ रहे हो, आप कंप्लेन कर रहे हो, आपके साथ लड़का 20 घंटा, आपने क्या किया हुआ है? correct. मतलब आपको नहीं लगता ये बेसिक होना चाहिए? She just kept quiet. और मैंने कोई उसको डांटा नहीं, आई वाज जस्ट आस्क्ड सिंपल क्वेश्चन कि आपने अपना काम नहीं किया। And the goal should be to increase functionality. Most parents that come, they have the same thing. How long are you going to be with your child? There will be a time when you सत्यम को will. फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, स्पेशल स्कूल में भी नहीं है। आए मतलब जब थोड़ा बड़ा हो तो हमने बोला इसको वोकेशनल का कुछ सिखा दो, और कुकिंग स्किल उसने खुद ने अपने आप एक्वायर की, मैंने नहीं। इट वाज नेवर, जब भी मैंने बोला ना वो ऐसे कढ़ाई लाया और मैं फोन पे बात कर रही थी, पप्पू पूरी, मैंने जा खुद ही बना ले, मैं फोन पे बात कर रही हूँ, एंड आई वाज लाइक थोड़ी देर बनाऊंगी, एंड सडनली आई स्मेल्ड ही मेड पूरी। I can't make puri today also. Yeah, and I have a video जो वो पराठा बना रहा है, I sent to my sister, she said दीदी बिलीव मी मैं इतने गोल पराठे नहीं बना पाऊंगी। seriously. Oh my god. So these are all वो skills. खाना खजाना, he was die-hard fan of खाना खजाना। तो अब मैंने ना उसको बहुत दिन के बाद, जब थोड़े दिन के बाद मैंने ना उसको शॉपिंग करने को भी लेके जाने को डर लगता था, ये सब महंगी चीजें उठा रहा है, लाल किला बासमती राइस। आपका प्रमोशन हो गया उधर। नहीं मतलब जो वो दिखाते ना, ये मसाले वो मसाले, उससे सस्ते मसाले भी आते ना, बट वो उसने टीवी में देखे हुए हैं, तो उसको वही चाहिए। तो आज से डेली तुम घर में बैठो, हम मसाले लेके आएंगे।
जो हमारा बजट बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है हमसे ना हो पाएगा ऐसे करके And does he cook well now? अभी अच्छा या नहीं वो इंडिपेंडेंट है So वो इंडिपेंडेंट है हाँ Wow, yaar. I would love to send my daughter also to एक you. कुकिंग कंपटीशन में गया तो उसके स्कूल में जो टीचर थी ना वो उस दिन कुछ बीमार हो गई कुछ नहीं तो देन प्रिंसिपल बोली अभी इसको साथ आपको जाना पड़ेगा मैं वहां गई तो दे सेड कि पेरेंट्स नॉट अलाउड तो आई सेड पेरेंट्स नॉट अलाउड और सबको एक काउंटर दिया था तो मैंने बोला पेरेंट्स नॉट अलाउड तो ठीक है मैं बैठती हूँ तो फिर वो बोला वो कर लेगा मैंने बोला आई डोंट नो मतलब कोई प्रॉम्प्ट है नहीं मुझे नहीं पता वो करेगा नहीं करेगा he got a special prize of course he didn't win because he was alone on the counter he cooked Wow. or without any कुछ गड़बड़ नहीं कुछ हाँ करके he got a special prize for that Super. And so heartwarming. Yeah. Very nice. then came Puratos so there are so many names I'm not so there मतलब एक Puratos करके एक इंटरनेशनल बेकरी फॉर्म है कुर्ला फिनिक्स में उसका मॉल वो था तो वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए वन ऑफ द नोन टीचर्स शी कॉल मी कि वुड यू लाइक टू जॉइन आई सेड कि पर ये तो आपके स्कूल का है ना तो बोलती नहीं आई हैव सीन सत्यम ना आई थिंक ही कैन डू दैट वेल तो मैं वहाँ गई तो आई वॉज वेरी मेरे को लगा आई गॉट वेरी डीमोटिवेटेड क्योंकि वहाँ पे सारे बच्चे स्लो लर्नर या सब बात कर रहे थे दे वेर चिल्ड आउट एंड सत्यम नॉन वर्बल विद जीरो फॉर्मल एजुकेशन और बेकरी में आपको परफेक्ट रेशियो ये वो चाहिए ऐसे करके मैंने बोले तो नहीं हो पाएगा ऐसे करके बट एट द फर्स्ट सेशन जो एंड हुआ उसके बाद जो वहाँ पे शेफ था ही सेड कि ही वाज द बेस्ट Oh. He has that inbuilt talent. inbuilt. Yeah. So I don't that's why I don't take the credit कि मैं तो सिर्फ बना ले मुझे नहीं पता तो वो पूरी बना लेगा But आपने वो छोड़ा. Yeah. Is why the things came out. You should take credit. Oh wow. Coming over to Doctor.